Good evening, friends. Today, once again, I'm come with my 10th video, which will be based on the relationship and why I'm come with the points of relationship. Because in management, there is a very big role. Name is there, which is role and responsibility. If you don't understand the role and responsibility, then you will not be a successful businessman or successful business person. Or if you are in a sales, then you are not a successful salesperson. If you are in management in any company, you will not be the successful manager. So before going into that topics, because if I want to go into that topics, I require to come with the first topics, which is relationship. Because in today's scenario, it is very commonly seen that relationships are not going in that way. That's why people don't understand what is the role and responsibilities. Like in office, if you go to if you want to understand the role and responsibility, first we have to go with the basic things. Means a father and a son. If a father, what is the role of the father and what is the role of the son, and what is the expectation, that is the responsibility of the father as well as of the son. So going into that topics, I'm just going with the relation, because without relation nobody can understand the role and responsibility better. Because that's why I'm come with that topics. First thing, why I'm saying about the relationship, because today's scenario, what is seen, that the child, that they are not hearing the parents. Why? The husband or wife, their relation are not that way. Maybe they have a rough relation, but practically their relations are not so strong. Why? The son and the parents, their relation are not strong. Maybe from the side of the parents they are much strong, but when it is come in the side of son or daughter, it is not so strong. Why these things happen? To understand that, I go into the depth of that. We people learn from the very basic stage of learning. We going to the schools where we learn the educations. Means ABCD we have learned. But will you think that was enough for us to understand the relationship? Because now we people can speak English, we people can do the this one, our basic jobs, but the practical thing is that we don't understand the relation. That's why the relations are not feasible practically. Our expectation levels on relation was too high, so that the other cannot afford sometimes, or what we expect from that relation, that the opposite, or maybe your expectation is too high that the opposite is not responding. That is the main thing. So I'm just going with the main topic of relationship today, and tomorrow I'll come with the follow-up topics of role, responsibilities, and how we can be success in business. This video is specially dedicated to the parents, that husband, wives, and the son and the mother. And if you like my channel, please subscribe my channel so that I come with more this kind of videos. दोस्त, आप लोगों को अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है, मैं और नया टॉपिक्स के ऊपर लाऊंगा, लेकिन पहले मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना कुछ भी रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, ताकि मैं आगे आप लोगों के साथ और वीडियोस शेयर कर पाऊँ जो आप लोगों को चाहिए, जिस टॉपिक्स पे चाहिए. मैं अभी बोल रहा था कि रिलेशनशिप के ऊपर मुझे बोलना है. तो रिलेशनशिप होता क्या है? ये रिलेशनशिप होता है ये बॉन्डिंग्स. रिलेशनशिप हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ब्लड के साथ ब्लड का ही हो. हाँ, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ब्लड का ब्लड रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन रिलेशनशिप में ये भी नाम आता है दोस्त के साथ ब्लड रिलेशन नहीं रहता है. रिलेशनशिप में ये भी नाम आता है वाइफ के साथ ब्लड रिलेशन नहीं रहता है. बट दैट रिलेशंस आर सो स्ट्रांग. वाई द रिलेशंस आर सो स्ट्रांग? बिकॉज दोस्त के साथ हम लोग जब बहुत अच्छा दोस्ती होता है तो उसका एक्सपेक्टेशन को समझते हैं, और
दूसरा दोस्त भी, दूसरे दोस्त का जो भी, मतलब एक आदमी में ऐसा भी हो सकता है कोई लेकुनास हो, मतलब प्रॉब्लम्स हो। हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है। अगर हर आदमी परफेक्ट होता तो वो भगवान बन जाता। हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उस प्रॉब्लम्स के साथ ही वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए वो दोस्ती स्ट्रांग होता है। जो दोस्ती आप लोग देखे होंगे, जिस दोस्ती में स्ट्रांग बॉन्डिंग है, उसमें दोनों ने ही कुछ ना कुछ छोड़ा होगा, नहीं तो रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं होता है। और हस्बैंड वाइफ में भी अगर आप हर चीज़ पकड़ने लगे तो वो रिलेशन स्ट्रांग नहीं बन सकता, और वो रिलेशन बहुत ज़्यादा दिन तक टिकेगा भी नहीं। क्योंकि आपको अगर बहुत स्ट्रांग रिलेशन मेंटेन करना है तो आपको कुछ चीज़ें छोड़ना भी होगा, उसका भी समझना होगा, आपको भी समझना होगा, ऑपोजिट को, दोनों को समझना होगा, दोनों को कुछ चीज़ें छोड़ना होगा, कुछ चीज़ें पकड़ना होगा। ऐसा नहीं बोलता मैं सब कुछ छोड़ दीजिए। हाँ, और आपको अगर कुछ चाहिए, जैसे आप दोस्त से मांगते हैं, ऐसा नहीं, दोस्त के ऊपर हम लोग हक नहीं जताते, हम लोग बोलते हैं ये चीज़ चाहिए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, दोस्त भी बोलता है, वो अपना प्रोस्पेक्टिव समझा देते हैं हम लोगों को कि मुझे, मैं इतना दूर तक दे सकता हूँ या फिर इतना कर सकता हूँ, तू बाकी देख ले। मतलब हम जब दोस्त से एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि उसमें एक दूसरा चीज़ रहता है कि हाँ ठीक है, वो अगर इतना नहीं दे पा रहा, इतना दे रहा है तो सही है। वैसे ही अगर हम लोग वाइफ से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर वाइफ हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों में भी वही बात होना चाहिए कि इतना नहीं दे पा रहा है तो इतना दे रहा है। और वहाँ पे भी आपको इतना समझना है कि वहाँ पे भी आप लोगों को वही चीज़ दोहराना है कि कुछ चीज़ें मिल सकता है, कुछ चीज़ें नहीं मिल सकता है, और हर चीज़ हर आदमी में होता नहीं है, और उसी के बीच में हम लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। दूसरा चीज़ है, जब रिलेशन में ज़्यादा एडजस्टमेंट हो जाता है तब वो रिलेशन बनता नहीं। क्यों? क्योंकि आप अगर उसको एडजस्टमेंट के हिसाब से लेते हैं तब वो बनता नहीं, लेकिन आप अगर उसको पकड़ेंगे ही नहीं, अगर सोचते वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो तो ठीक है, वो नहीं कर पा रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है, ये है वो है, अगर कोई भी इश्यूज हो जिसको अगर आपको आ जाएगा, आप अगर उसके जगह में जाके सोचेंगे ना तो उसको एडजस्टमेंट नहीं लगेगा, तब आप उसको सही लगेगा। अगर कहीं गलतियां हैं तो उसको रेक्टिफाई कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको प्रेशर क्रिएट कीजिए या फिर कुछ। ये दोनों के लिए लागू होता है, ऐसा नहीं कि एक के लिए लागू होता है, दोनों को ही दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। और मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि नेक्स्ट जनरेशन अगर अच्छा होगा तो ही हम लोगों का सोसाइटी अच्छा बनेगा, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके ऊपर बोलते हुए मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ बच्चे को ना आप लोग एडुकेशन, मतलब पढ़ाई का एडुकेशन मत दो, बच्चों को थोड़ा समझाओ कि रिस्पेक्ट बोल के भी एक चीज़ होता है, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करो, उनका बातें सुनो। वो अगर कुछ बोल रहा है तो डेफिनेटली वो अपना तजुर्बे से बोल रहा है, क्योंकि उसने भी अपना ज़िंदगी का 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बिताया होगा, 50 साल बिताया होगा ये दुनिया में। उसने दुनिया को देखा है, उसने ये दुनिया से समझा है बहुत कुछ। तो उनका अगर कुछ बात रहता है, हो सकता है आपको बुरा लगे, क्योंकि आज का जनरेशन जो है उनका जो ख्याल है बहुत डिफरेंट है, और जो पुराना ख्याल है वो डिफरेंट है। हाँ, मैं समझता हूँ वो ब्रेजिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का ग्रैंड पेरेंट्स हो, मम्मी पापा हो, उनको समझना पड़ेगा कि हम लोगों का दुनिया जो था वो अलग था, क्योंकि वो हम लोग 20 साल पीछे थे, 25 साल पीछे थे, 30 साल पीछे थे, और ये लोग 30 साल आगे हैं। तो अभी के हिसाब से उन लोगों का दिमाग को भी, ये बहुत, मतलब बच्चे नहीं, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि आज 30 साल हम लोग जब थे वो 30 साल पीछे का बात था, 35 साल पीछे का बात था। अभी जो है दुनिया थोड़ा 30 साल आगे चल चुका है, तो ये 30 साल के बाद जो हो रहा है वो वाला दिमाग आपके पास भी रहना पड़ेगा, उतना मेंटलिटी आपके पास भी रहना पड़ेगा, और बच्चे को उस हिसाब से समझाना भी पड़ेगा, ताकि उसका जो आगे वाला आने वाला ज़िंदगी है उसमें वो समझ सके, बड़ों को रिस्पेक्ट कर पाए। और रिस्पेक्ट ये घर से शुरू होता है, क्योंकि आज के डेट में कोई गुरुकुल तो है नहीं, बच्चे गुरुकुल में जाके पढ़ता होगा, बच्चा घर में सीखता है। अगर आप, बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप जो बोलो वो नहीं करता, आप जो करते हैं ना वही बच्चे फॉलो करते हैं। तो ये क्या है कि ये एक लीडरशिप का भी, लीडरशिप फॉर्म में भी अगर जाएंगे तो उसमें भी बोलता है, व्हाट लीडर सेज दैट नॉट डन बाय द फॉलोअर्स।
व्हाट लीडर डिड्स दैट डन बाय द फॉलोअर्स। मीन्स लीडर जो बोलता है वो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, जो लीडर करता है वही फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। हर बच्चे का रोल मॉडल इधर पापा होता है या फिर मम्मा होता है, 90% में पापा होता है। तो आप लोगों को यही सोचना है कि अगर रोल मॉडल है, मतलब हम जो करेंगे वही करेगा, तो अपना विचार को, अपना थॉट्स को, अपना ज़िंदगी जीने का तरीका को, अपना रिस्पेक्ट को इतना शो कीजिए ताकि बच्चे तक वो पहुंच पाए, बच्चे भी करे वैसा। क्योंकि आप अगर बच्चे के सामने झूठ बोलेंगे, आप अगर बच्चे के सामने बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अगर बच्चे के सामने जो कुछ दूसरा काम, मतलब किसी को गाली देना हो या फिर कुछ भी करना हो, ऐसा कुछ करेंगे तो बच्चे भी वो सीखेगा। तो वैसा मत कीजिए। बच्चे को अगर ठीक तरह से बनाना है तो उसके ऊपर उसको उसको उसके सामने कुछ भी ऐसा मत कीजिए जो वो सीखे और वो चीज़ बुरा हो। मेरा जो लास्ट पॉइंट था कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर जो वीडियो है वो मैं कल लाऊंगा। और बाकी मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि थोड़ा बच्चे के ऊपर टाइम दीजिए, बच्चे को समझिए, उनका भी एक्सपेक्टेशन को समझिए। क्योंकि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जब बात आता है, बच्चे अपना रोल में प्ले करता है, तो हम लोगों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझना चाहिए ताकि हर चीज़ अच्छा हो। इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ में भी वही बात बोलूँगा, दोनों का एक अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर हस्बैंड अगर वाइफ के पास जाके अपना मम्मी वाला रोल करेगा, मतलब बेटा जैसा रोल करेगा, तो वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा कि ये बेटा तो नहीं है मेरा। तो वाइफ भी अगर हस्बैंड के पास जाके वाइफ वाला रोल छोड़ के बहन वाला रोल करेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी रिलेशन में अगर आप अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक तरह निभाएंगे तो हर रिलेशन अच्छा हो जाएगा और हर रिलेशन अच्छा चलेगा। विद दिस टिप मैं अपना वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ भी ऐसा लगे जहाँ पे आप लोगों को कमेंट्स करना है तो कमेंट्स कीजिए। और कोई टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए ताकि मैं आप लोगों को आगे और वीडियोस दे पाऊँ। ओके, बाय, जय हिंद।